آج محکمات اور متشابہات کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہات، انشاءاللہ اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گی۔ پہلے یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے، اس میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہی ہے، یعنی وہ وہی یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، جس میں واضح یعنی کلیئر اور مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ اب محکم اور متشابہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ محکمات کس کو کہتے ہیں، یعنی محکم آیات جو کہا گیا ہے وہ کیا چیز ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا مطلب بڑا واضح ہو، کلیئر ہو، صاف صاف ہوتا ہے، جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ اگر پڑھیں گے بھی تو آپ کو کلیئرلی سمجھے گا کہ کیا مطلب ہے، اور جن کا مفہوم جو ہے وہ متعین یعنی اسپیسیفائڈ ہوتا ہے، وہ کلیئر بھی ہوتا ہے، اسپیسیفائڈ بھی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ابھی جیسے سورہ البقرہ آیت نمبر 163 میں آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ ہم سب کا معبود کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہ تو کلیئر بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم تفسیر میں جائیں اور معلوم کریں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو یہ کلیئر آیات ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی ہے۔ تمام انسانوں کا معبود ایک ہے، اس میں کلیئر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہاں توحید کا مفہوم بالکل واضح کیا گیا، کلیئر کیا گیا کہ سبھی کا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت لیتے ہیں، جیسے سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں آتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں واضح آیت ہے کہ کسی کو بھی اگر آپ بولیں گے ٹرانسلیشن تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ اللہ نے تجارت کو یعنی بزنس کو حلال کہا ہے، اور جو ربا لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ کلیئر آیت سمجھنے والی ہیں۔ یہاں واضح طور پر تجارت کو حلال اور سود کو حرام کہا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سود لینا حرام ہے۔ تو محکمات میں بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت اور جو بھی احکام آئے ہوئے، تو یہ سارے چیزیں، اور ایون حلال و حرام کیا ہے، اور پھر پہلی قوموں کے جو واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، اور پھر عاد، سمود، یہ سارے جو واقعات آئے ہوئے، یہ سب محکم آیات ہیں۔ اس میں سمجھنے والی بالکل کلیئر باتیں آپ کو نظر آئے گی۔ اب جو متشابہات ہیں وہ کیا ہیں؟ متشابہات آیات کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھٹک گئے ہیں۔ یہ جو متشابہات آیات ہیں وہ آیتیں ہیں جن کے معنی واضح نہ ہوں، یعنی کلیئر نہیں ہے، اس کے مطلب آپ کو کلیئر سمجھ میں نہیں آئے گا، جن کا مفہوم پوری طرح سمجھا نہ جا سکے، یعنی اس کو آپ صحیح سے سمجھ نہیں پائیں گے، جن کی کیفیت جو ہے ہمارے عقل سے ماورا ہے، یعنی بیونڈ ہے، ہماری عقل اس کو نہیں کیچ کر سکتی۔ ایسی بھی کچھ آیتیں ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جیسے الف لام میم، یاسین، الف لام را، یہ جو حروف مقطعات ہیں اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بھی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ الف کا مطلب ہے اللہ، لام کا مطلب ہے جبریل علیہ السلام، اور میم کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھٹکا دینے والی ہے، جس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور صحابہ سے بھی ہمیں نہیں ملتی، اس میں پڑھنا نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ جو متشابہات حروف مقطعات جو آتے ہیں وہ ہمیں اس کا کوئی مطلب پتہ نہیں ہے، اور اس کو پتہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں۔ جو بھی ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جیسے الف لام میم پڑھیں گے
تو آپ کو 30 नेकियां मिलेगी। अलिफ पे 10, लाम पे 10 और मीम पे 10। सो 10 + 10 + 10 कितना होता है 30। सो 30 नेकियां आपको मिल जाएगी इसकी। लेकिन इसकी तफसीर में नहीं पढ़े। कुछ लोगों ने इसकी तफसीर करने की कोशिश की है और भटक गए हैं, तो ये तफसीर हमें नहीं पता, हम इसको मालूम करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तो ये मुतशाबिहात आयात हैं। वल्लाहु आलम इसका मतलब क्या है अल्लाह को ही मालूम है। बस इसका अजर मिलेगा और हमें नहीं पता है तो हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। अब दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे सूरह तौहा में आता है आया नंबर 5 में, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। रहमान अर्श पर कायम हुआ, इस्टैब्लिश हुआ। तो अब इसका क्या मतलब है, इसमें हम पढ़ेंगे नहीं कि अल्लाह किस तरह कायम हुआ, कैफियत क्या है। ये सवाल पूछना नहीं चाहिए कि कैसे अल्लाह कायम है अर्श पर, और अल्लाह का अर्श कैसा है या उस पर कैसे कायम है। इन सवालों का कोई वाज़े जवाब हमारे पास नहीं है। जो हमें कहा गया हम उसको मानते हैं। कहीं पे आता है अल्लाह का हाथ है, अब अल्लाह का हाथ कैसा है, इन चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए वरना भटक जाएंगे। अगर कोई कोशिश भी करता है तो भी नहीं मालूम कर सकता, क्योंकि जो चीज़ हमें बताई नहीं गई है वो हम नहीं मालूम कर सकते। तो ये मुतशाबिहात आयात है, उसकी कोई तफसीर नहीं होगी। सिर्फ ये होगा रहमान जो है अर्श पर कायम है, डेट्स ऑल। किस तरह है कैफियत पूछना नहीं चाहिए। इमाम मालिक को किसी ने यही क्वेश्चन किया था कि कैफियत पूछा था कि वो किस तरह कायम है, तो इमाम मालिक ने कहा ये तो मालूम है कि कायम है, लेकिन किस तरह कैफियत पूछना नहीं चाहिए। कैफियत पूछने वाले को उनके मजलिस से बाहर निकाला गया था। इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए जो लोगों को भटकाने वाले। अब होता क्या है, क्यों निकाला गया था, अगर एक इंसान ये क्वेश्चन करता है तो साथ वाले स्टूडेंट उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट होंगे। तो ऐसे इस तरह के जो मुतशाबिहात आयात है उसके क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। वो हमें नहीं पता, अल्लाह का हाथ है कैसा है वल्लाहु आलम। जब हम मिलेंगे अल्लाह से तब देखेंगे, अभी हम नहीं कुछ बता सकते। अल्लाह कैसा है नौजुबिल्ला ये भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सूरह आले इमरान की जो अभी मैंने आयत पढ़ी थी उसका ही 7 नंबर जो आयत है उसी का कंटिन्यूशन आता है आगे। मैं मफहूम से बता रही हूँ। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है, क्रुकनेस है, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं। यानी जिन लोगों के दिल टेढ़े हैं ना, वो क्या करते हैं, मुतशाबिहात के पीछे पड़ते। उनको क्या लगता है पता है, जो अभी तक किसी ने तफसीर नहीं की, हम तफसीर करेंगे, रिसर्च करेंगे, उनको लगता है बड़े पीएचडी होल्डर हो जाएंगे। पता नहीं किस चीज़ के लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बेकार कोशिशें हैं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये जो जिनके दिलों में टेढ़ है ना, वो इसी के पीछे पड़े हुए रहते हैं, जो मुतशाबिहात आयत हैं। और आगे इसके आता है कि ताकि क्यों करते हैं, ताकि फितना पैदा करे। फितना पैदा करने के लिए ये सब करे और तावीले यानी अपनी मनमानी मतलब तलाश करें अपनी मर्ज़ी से। ये होता है ना रिसर्च पेपर जो देते हैं, उसमें रिसर्च करने बोलते हैं जो आज तक किसी ने रिसर्च नहीं की है, इसलिए तो पीएचडी वगैरह मिल जाते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं कि हम बताएंगे इसका मतलब क्या है, इसका कोई फ़ायदा नहीं इसके पीछे पड़ के। तो ये अपने मनमानी जो मतलब है वो तलाश करते हैं, तावीलें करते हैं। इसके आगे आता है कि हालांकि इसके तावील यानी ये जो आयत है मुतशाबिहात, इसकी तावील को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। तो आगे जो आयत आती है वो किसी ने किसी ट्रांसलेशन में आपको जॉइंट करके मिली होगी। उन्होंने कहा है कि ये जो आगे आई हुई आयत है ना, वो इसी से मिला हुई कि अल्लाह और जो पुख्ता मजबूत इल्म वाले हैं वो जानते हैं, लेकिन ये गलत है। वहाँ पर मीम का साइन बना हुआ होगा, हमारे जो है इंडो पाक में, वहाँ स्टॉप करना है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आगे की आयत आगे से कंटिन्यू करेंगे, उसमें क्या आता है उसका मफहूम। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं, यानी इन मुतशाबिहात आयत के बारे में वो लोग क्या कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके हैं। यानी जो भी आयतें नाजिल हुई, अल्लाह अर्श पर कायम है, हुरूफ मुक़त्तात है, अल्लाह का हाथ है,
इन सब पर हम ईमान लाते, कैसे है क्या है हम नहीं पूछते, समय न वाता ना करते, हमने सुना हमने इताअत की। ये हमारे रब की तरफ से है। वो कहते हैं जो इल्म वाले हैं, पुख्ता इल्म वाले, बोलते ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं। तो अक्लमंद वो है जो मुतशाबिहात को माने और उसके पीछे नहीं पड़े। लेकिन जो मुतशाबिहात के पीछे पड़ते उनको लगता है कि हम ही अक्लमंद हैं, हम रिसर्च करेंगे, हालांकि वही बेवकूफ़ है, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अहले इल्म का तरीका क्या होता है? उनका तरीका यह होता है कि वो महकमात को मानते हैं। महकम को तो मानते ही हैं, कि जैसे मैंने अभी बताया कि हलाल हराम की बात बताई गई, फिर जो तौहीद की बात बताई गई, उन सब को मानते हैं और उनकी पैरवी भी करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, उन अहकाम पर अमल भी करते हैं। जो भी महकम आयत आई हुई उस पर अमल भी उनका होता है। लेकिन जो मुतशाबिहात हैं उनको मानने के लिए उनकी खोज कुरेद नहीं करते कि ये क्यों है, कैसे अल्लाह का हाथ है नौजुबिल्ला, और अल्लाह कैसे अर्श पे कायम है, इसकी खोज कुरेद नहीं करते, इसमें नहीं पढ़ते। और जो कुछ और जितना कुछ बताया जाता है उस पर ही कनात करते हैं, दैट्स इनफ फॉर देम। मतलब वो और ज़्यादा खोज कुरेद करने की कोशिश नहीं करते, उस पर ही सेटिस्फाई होते हो। अच्छा अल्लाह का हाथ है, हमने ये पूछेंगे कि कैसे, कैफियत वगैरह पूछना हराम है, क्योंकि इसका किसी के पास जवाब नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जवाब नहीं है तो और किसके पास हो सकता है? तो इन आयात को वाज़ेह और मुतय्यन यानी स्पेसिफाई करने की बेकार कोशिश नहीं करते हो कि किस तरह क्या है, इसमें नहीं पढ़ते हो। तो हमें भी यही करना चाहिए कि हमें मुतशाबिहात जो आयत है उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ हो ना, वो महकमात से ज़्यादा मुतशाबिहात में दिलचस्पी लेंगे, उनका इंटरेस्ट जो है ना वो मुतशाबिहात में शो करेंगे। अच्छा दूसरों को नहीं पता है ना, हम बताते हैं अलिफ लाम मीम का क्या है, अर्श पे कैसा है, और नौजुबिल्ला कैसे हाथ हो सकते हैं, नौजुबिल्ला ये सारे हराम है इसमें पढ़ना। इसकी नई नई तावीलें भी करते हैं इन लोग। इस तरह खुद को भी गुमराह करते हैं और दूसरों को भी गुमराह करने का ज़रिया बनते हैं। खुद तो गुमराह ही, जिसको इल्म दे रहे हैं उसको भी गुमराह कर रहे हैं। इसलिए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। जब भी आप तफसीर पढ़ेंगे पहले देखिए कि ऑथेंटिसिटी क्या है और किससे पढ़ रहे हैं, पहले मालूम करें। तो मुतशाबिहात के ज़रिए लोगों की आजमाइश होती है। ये क्यों है मुतशाबिहात? अब कोई क्वेश्चन कर सकता है, अगर आपको नहीं मालूम अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है तो ये मुतशाबिहात है क्यों? तो ये जो मुतशाबिहात है उससे सबसे पहले बहुत सारी हिकमतें हैं उसकी, लेकिन एक हिकमत यह है कि लोगों की आजमाइश होती है इसमें कि वो गैब पर ईमान लाते हैं या नहीं, समय न व अता ना करते हैं या नहीं, जो बात अक्ल में नहीं आ रही है उसे मानते हैं या नहीं। जो अल्लाह ने कहा हम उसको मानते हैं, भले हमें समझ में नहीं आ रही बात। वही की पैरवी करते हैं या अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, ये भी टेस्ट है, उनकी आजमाइश है कि ये देखना है। और बहुत सारी हिकमतें हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये महकमात और मुतशाबिहात के बारे में मैंने बहुत ही शॉर्ट में करके बताई हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए तो और बहुत सारी आपको बुक्स मिलेंगी, वहाँ भी आप जाके देख सकते। लेकिन मेरे ख्याल से ये इनफ है हमारे लिए। जब हम तफसीर करें तो इसको जहन में रखें कि कुछ आयत की तफसीर नहीं होगी क्योंकि वो मुतशाबिहात में आएगी।